بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کے لیے کتاب لائے ہیں مستانی، آواز منتہا یوسف، مصنف محمد مونس خان۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کال نمبر 0300291960 یا واٹس ایپ نمبر 0333249573 پر محمد اظہر لطیف سے۔ اس کے اسپانسر ہے علی رضا۔ یہ کتاب 200 صفحات پر مبنی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 2، صفحہ نمبر 22۔ سوچ لے سمجھ لے، میں نے اسے متمدی کیا، وہ اچھے اچھوں کو بھگا چکی ہے۔ ارے مستانی کو بھگانے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اس نے دانت پیس کر کہا۔ دوسرے ہی لمحے زور سے ہنس کر تانگے والے سے بولی، کیوں بھائی میرے ساتھ بھاگے گا؟ رحم کر مائی، تانگے والا ہاتھ جوڑ کر بولا، تیرے ساتھ تو ہوائی جہاز بھی نہیں بھاگ سکتا۔ اور جب میں نے تانگے والے سے اس بارے میں وضاحت چاہی تو اس نے بتایا، مستانی پلک جھپکتے میں سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر لیتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے مستانی کو ایک ہی وقت میں کئی شہروں میں بھی دیکھا ہے، یہ اس کی تیز رفتاری کی مثال ہے۔ تانگے والی کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ میرے ذہن میں ایک بار پھر مادہ پرستی نے جھرجھری سی لی۔ مائی مستانی کی اب تک کی باتوں سے میں نے صرف یہ اندازہ لگایا وہ کچھ نہ کچھ سے ضرور، اور پھر جہاں بہت سے پیر و فقیر کو آزمایا جا چکا ہے وہاں مستانی کو آزمانے میں کیا حرج ہے۔ جس وقت ہم لوگ گھر پہنچے تو سورج ڈوب چکا تھا اور رات کی سیاہی آہستہ آہستہ اپنا دامن پھیلا رہی تھی۔ خالہ جان صحن میں بیٹھی چھالیاں کتر رہی تھی اور رانی حسب معمول اپنے کمرے میں پلنگ پر لیٹی تھی۔ مائی مستانی عین صحن کے بیچ میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ خالہ جان نے ایک نظر مستانی پہ ڈالی، مجھ سے بولی، ارے بیٹا اسے تم کہاں سے پکڑ لائے؟ یہ تو پاگل عورت ہے، دن بھر گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے، زندگی کھیل ہی کا نام ہے۔ مستانی نے خالہ سے مخاطب ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی رانی اپنے کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس سے معمول کے مطابق کسی انجانے ذریعے سے مستانی کی آمد کا پتہ چل گیا تھا۔ میرا خیال تھا کچھ ہی دیر میں وہ مستانی کو گالیاں دینا شروع کر دے گی اور اگر پھر بھی نہ بھاگی تو دست و گریباں ہو جائے گی۔ رانی دروازے کے درمیان میں کھڑی مستانی کو گھور رہی تھی، لمحہ بلمحہ اس کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ مستانی نے بھی اپنی نگاہیں رانی کی نگاہوں میں گاڑ رکھی تھیں۔ وہ دونوں پلکیں جھپکائے بغیر ایک دوسرے کو تکیے جا رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا دونوں مسرزم کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ حق اور باطل کا یہ معرکہ عجیب نوعیت کا تھا۔ ہم سب دم بخود کبھی رانی اور کبھی مستانی کو دیکھ رہے تھے۔ مائی مستانی کے چہرے پر جلال برس رہا تھا اور اس کے ساتھ کبھی کبھی گلاب کی خوشبو کا جھونکا ہم سب کے دماغ کو معطر کر جاتا۔ قریب 5-7 منٹ میں وہ دونوں نظریں ملائے رہی، پھر آہستہ آہستہ رانی کی نظریں جھکتی چلی گئیں جیسے تھے شکست ہو گئی ہو۔ وہ فرش کو تک رہی تھی جیسے وہ شرمندہ ہو۔ بس بیٹا ہار گئے؟ مستانی کی آواز گونجی، پھر وہ اپنے سامنے زمین پر ہاتھ مار کر بڑے ہی پیار بھرے لہجے میں بولی، آؤ بیٹا یہاں آ جاؤ۔ رانی نے ایک نظر مستانی کی طرف دیکھا اور دوبارہ گردن جھکا لی۔ آ جاؤ بیٹا آ جاؤ۔ مستانی نے دوبارہ ہی اس لہجے میں رانی کو مخاطب کیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایسے نہیں مانو گے، مستانی نے مسکرا کر کہا۔ پھر اس نے اپنے دائیں ہاتھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور وہی ہاتھ زمین پر زور سے دے مارا۔ اس کے ساتھ ہی رانی اپنی جگہ سے اس طرح اٹھی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ خود چاروں ہاتھوں پیروں سے بندر کی طرح چلتی ہوئی مستانی کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ او ہو، تو یہ ہے تو؟ مائی مستانی کے لہجے میں قدرے حیرت نمایاں تھی۔ ہم سب بے چان بتوں کی مانند گمسم بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ بیٹھ جاؤ، مستانی نے نہایت روب سے رانی کو حکم دیا۔ رانی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، لیکن اس نے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ معلوم ہوتا تھا وہ مستانی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کر رہی ہے۔ میری طرف دیکھو، مائی مستانی نے رانی سے مخاطب ہوئی۔
दूर हो यहाँ से। रानी ने ऐसी बुरी तरह से धुतकारा और उठकर जाने लगी। इसी लम्हे माई मस्तानी ने अपनी मैली कमीज का दामन दांतों में दबा लिया। रानी जू की तू खड़ी की खड़ी रह गई। हम सब ने देखा इसने जाने की खातिर 2-3 बार हाथ पांव उठाए, लेकिन यूं महसूस होता था जैसे किसी ने इसके पांव सख्ती के साथ जमीन से जकड़ दिए हैं। माई मस्तानी दांतों में अपनी कमीज का दामन दबाए मुस्कुरा रही थी। फिर रानी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही फर्श पर बैठती चली गई। इसे तंग क्यों करता है? माई मस्तानी ने रानी से पूछा। मेरी मर्जी, रानी ने हंसकर जवाब दिया। अब की इसकी आवाज बिल्कुल ही बदल चुकी थी। वो मर्दों जैसी भारी आवाज में बातें कर रही थी। तेरी मर्जी नहीं चलेगी, माई मस्तानी ने गुस्से से कहा। तेरी मर्जी भी नहीं चलेगी, रानी ने एक बेहंगम सा कहकहा लगाकर कहा। मेरी मर्जी चलेगी। माई मस्तानी का लहजा सख्त हो गया। अरे जा, मेरी मामूल बन चुकी है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। रानी ने इसी तरह जोर से हंसकर जवाब दिया। तेरी मोहब्बत की ऐसी की तैसी, सच सच बता तू यहाँ क्यों आया है? माई मस्तानी ने करफ्त लहजे में पूछा। जवाब में रानी ने तेजी से मस्तानी के सर की जानिब हाथ बढ़ाया। गालिबन वो इसके बाल पकड़ना चाहती थी, लेकिन मस्तानी चौकन्नी थी। इसने झुकाई देकर सर को बचा लिया और इसे डांटते हुए बोली, खबरदार मुझे हाथ ना लगाना। इसके साथ ही इसने आहिस्ता से जमीन पर हाथ मारा। रानी सहम कर सिमट गई। बता क्यों आया है? मस्तानी ने दोबारा फजा में हाथ बुलंद करके पूछा। जा अपना काम कर, रानी ने लापरवाही से जवाब दिया और साथ ही जमीन पर जोर से हाथ मारा। जमीन पर धप की आवाज के साथ ही मस्तानी अपनी जगह से इस तरह उछली जैसे उसे किसी ने खड़ा कर दिया हो। क्या तू अल्लाह वालों से मुकाबला करेगा? माई मस्तानी ने दोबारा अपनी जगह पर जमकर बैठते हुए कहा। मस्तानी से मुकाबला करेगा? अरे अल्लाह की दीवानी के मुकाबले पे आएगा, आप पंजा लड़ाएगा। इतना कहकर मस्तानी ने अपने सीधे हाथ का पंजा रानी की तरफ बढ़ाया। रानी ने एक जोरदार कहकहा लगाया और हाथ जमीन पर मारने की खातिर उठा दिया। मस्तानी ने अपने हाथ के नीचे का रुख रानी की तरफ कर रखा था। रानी ने जमीन पर जोर से हाथ मारा। इसके साथ ही इसने एक दिल खराश चीख मारकर इसका हाथ पकड़ लिया। अल्लाह की दीवानी से लड़ेगा? माई मस्तानी ने एक जोरदार कहकहा लगाकर तंज किया और साथ ही अपने पंजा जमीन पर गाड़ दिया। माई मस्तानी ने जैसे ही पंजा जमीन पर गाड़ा, रानी ने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ लिया। इसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। मालूम होता था कोई इसका गला घूट रहा है। रानी के मुंह से खर-खर की आवाजें निकलने लगी। खाला जान से रानी की ये हालत देखी ना गई। वो अपनी जगह से उठी। इसके साथ ही माई मस्तानी कड़कदार आवाज से बोली, खबरदार कोई अपनी जगह से ना हिले। खाला चांद छोड़कर ऐसे ही दम साध कर बैठ गई। छोड़ दे मुझे, रानी की घुटी घुटी आवाज में चिल्लाई। पहले तू बता यहाँ क्यों आया है, किसने तुझे भेजा है? मस्तानी ने फिर अपना सवाल दोहराया। मुझे जमींदार के लड़के ने भेजा है, वो शादी करना चाहता है रानी के साथ, रानी ने बेबसी से जवाब दिया। ये सुनते ही खाला और शायद इस तरह चौके जैसे ख्वाब से बेदार हुए हों। अब इन्होंने समझा काफी अरसा कबल शादी से इनकार पर असगर ने ये नाजेबा हरकत की है। माई मस्तानी ने एक नजर हम सब की तरफ देखा, फिर फौरन ही पंजा हटाकर जमीन पर हाथ मारते हुए बोली, अच्छा चल अब भाग यहाँ से। इसके साथ ही रानी ने अपनी कमर पकड़ ली, जैसे मस्तानी ने इसके कमर पर हाथ मारा हो। फिर जैसे जैसे मस्तानी पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई, वो जमीन पर मुसलसल पूरी कुव्वत से हाथ मार रही थी। सहन में रानी की चीखें बुलंद हो रही थी। जमीन पर माई मस्तानी का हाथ पड़ते ही रानी अपने जिस्म के किसी न किसी हिस्से को
चीख मारकर पकड़ लेती, जैसे मस्तानी से बराह रास्त मार रही हो। फिर देखते ही देखते रानी के सर के ऐन दरमियान से चंद बाल ऊपर को उठना शुरू हो गए। ये मसला हम सब के लिए हैरत अंगेज था। मस्तानी जू जू जमीन पे हाथ मारती जा रही थी, रानी के सर के बाल ऊपर को उठते जा रहे थे, और जब बाल किसी हद तक इस्तादा हो गए तो मस्तानी ने आगे बढ़कर इन्हें नोच लिया। इसके साथ ही रानी बेहोश होकर जमीन पर लुढ़क गई। हम सब जो बुद्ध बने ये तमाशा देख रहे थे, एकदम इसकी जानिब बढ़े। इसकी शादी उसी से कर दे वरना फिर सताएगा, माई मस्तानी ने मुझसे मुखातिब होकर कहा। फिर वो अपना लंबा कुर्ता झाड़ते हुए खड़ी हो गई और बेहोश रानी को अंदर ले जाने के लिए कहा। मैंने खाला जान और शाहिद की मदद से रानी को उठाया और अंदर कमरे में ले गए। ऐन इसी लम्हे जब हम सब रानी को पलंग पर लिटा रहे थे, सहन में से मस्तानी की आवाज सुनाई दी, अरे ओ बेयकीन पान तो खिला दे। अभी देती हूँ, खाला ने कमरे में से ही जवाब दिया और जल्दी से रानी के सर के नीचे तकिया रखकर बाहर निकल आई। मैं भी शाहिद के साथ बाहर आ गया ताकि माई मस्तानी को इनाम दे सकूं और इस आसिफ की हकीकत मालूम कर सकूं। लेकिन सहन खाली पड़ा था और खालाजान हैरत की तस्वीर बनी खड़ी थी। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि मस्तानी आवाज के साथ ही कहाँ गायब हो गई। मैं और शायद बाहर की तरफ भागे, लेकिन बाहर भी गली वीरान पड़ी हुई थी। मैंने इसे हैदराबाद की सड़क पर और हर गली में तलाश किया, वो कहीं भी न मिल सकी। तलाश। इस वाकई के 3 माह बाद एक रोज शाम के वक्त मैंने मस्तानी को शाही बाजार में देखा। मैं फौरन ही इसकी तरफ लपका। ये रात के 8 बजे का वक्त था। इस वक्त शाही बाजार में बहुत ही कम रश होता था। बेशतर दुकानदार अपने अपने घरों को जा चुके थे और इस तरह खरीदो फरोख्त करने वालों की तादाद बहुत ही कम हो गई थी। मस्तानी मुझसे 10-15 कदम आगे जा रही थी। मैंने आहिस्ता से उसे आवाज दी। मस्तानी ने पलटकर मेरी तरफ देखा। मैं समझा इसने मुझे पहचान लिया है। मेरा ख्याल था 10-5 कदम तेज चलूंगा और मस्तानी को जा लूंगा, लेकिन नहीं। मैं तेज चलता, जरा फासला ही कम कायम रहता और ये फासला ऐसा था जैसे शाही बाजार से तंग बाजार में आसानी से तय किया जा सकता था। लेकिन ना जाने क्या बात थी, मैं जब भी इन लोगों के दरमियान से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता, मुझे मस्तानी वैसे ही पहले वाले फासले पर जाती मिलती। इस तरह हम दोनों मार्केट तक आ गए। इस जमाने में मार्केट के पहले चौराहे पे पान वालों की दुकानें थी। मस्तानी एक पान वाले की दुकान पर जाकर रुक गई। पनवाड़ी ने फौरन ही मस्तानी की पसंद का पान बनाकर उसे पेश किया। इतनी देर में मैं भी वहां पहुंच गया। मस्तानी ने एक नजर मुझे देखा, मुस्कुराकर बोली, पान खाएगा? नहीं, मैं पान नहीं खाऊंगा, मैंने जवाब दिया। दरअसल इस तरह मैं चाहता था उसे एहसान मंद करके अपने मतलब की बात कर लूं। पान खिलाएगा? मस्तानी ने मुझसे कदरे ताज्जुब से पूछा। फिर एक जोरदार कहका लगाकर पनवाड़ी से बोली, लो सुनो, ये मुझे पान खिलाएगा। बाबूजी, से पान खिलाना आसान नहीं है, पनवाड़ी ने मुझे समझाया। बेहतर है सीधे पान खा लो। इससे पहले कि मैं कुछ मस्तानी पनवाड़ी से बोली, इसे पान दो बेटा। पनवाड़ी ने एक सादा पान बनाकर मेरी तरफ बढ़ाया। इससे पहले कि मैं पान लेता, मस्तानी ने इसके हाथ से उचक लिया और फिर मेरे मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अपने मतवाले को मैं खुद पान खिलाऊंगी। मस्तानी के इस जुमले पर मैं झेप सा गया। पनवाड़ी भी मुस्कुराने लगा, लेकिन क्या करता, बादल नखास्ता पान मुंह में रख इसके हाथ से खाना पड़ा। वो पान जैसे मस्तानी ने अपने हाथ से खिलाया था, यकीन जानिए इस जैसा पान फिर कभी खाने को नहीं मिला। इसकी खुशबू और लज्जत आज भी कभी कभी ज़बान पर महसूस हो जाती है। पान खाने के बाद मेरा मुंह जैसे बंद हो गया। मैं कहता हूँ दुनिया की लजीज से लजीज खाने की चीज इस पान के जायका का मुकाबला नहीं कर सकती। पान खिलाने के बाद मस्तानी मार्केट के चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ी और तांगा स्टैंड की दूसरी जानिब कूड़े के ढेर पर बैठ गई। मैं इसके पीछे ही था। वो जगह थी जहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ टांगों की एक लंबी सी कतार होती थी। मैं चलता हुआ इसके सामने पहुंच गया। क्या बात है, अब मेरा पीछे छोड़ दे।
مستانی نے مسکرا کر کہا۔ مستانی، میں نے پیک نکلتے ہوئے کہا، اس دن تو کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں کہاں غائب ہو گئی تھی؟ مستانی نے لاپرواہی سے جواب دیا، میں تو تم سب کے سامنے ہی تھی، مگر اگر تم سب اندھے ہو گئے تو میں کیا کرتی؟ مستانی، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ رانی پر کس کا آسیب تھا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہنومان تھا، وہ زمیندار کے بیٹے نے بھیجا تھا، مستانی نے اسی طرح لاپرواہی سے جواب دیا۔ مستانی، میں نے اسے مخاطب کیا، پھر کچھ دیر سوچنے لگا کہ اس سے اپنے دل کی بات کس طرح کروں۔ کیا یہ حواس باختہ عورت واقعی کوئی ماورائی ہستی ہے؟ جا، اب مجھے تنگ نہ کر۔ مستانی نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا۔ نہیں مستانی، مجھے یہ بتاؤ، ہنومان کون ہے؟ اسے کس طرح بھیجا جا سکتا ہے؟ کس آسیب کا وجود ہے؟ کیا جادو واقعی اثر رکھتا ہے؟ میں نے اسے ہمت کر کے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ مستانی پاگلوں کی طرح خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے اسے میری عقل پر شبہ ہو۔ پھر اس نے زوردار قہقہہ لگایا اور ذرا فاصلے پہ کھڑے ہوئے تانگے والے کی طرف دیکھ کر بولی، تو مجھے بے عزت کرنا چاہتا ہے؟ مجھے بے نقاب کرنا چاہتا ہے؟ مجھ سے شادی کرے گا؟ مستانی کے ان جملوں سے میں گھبرا سا گیا۔ تانگے والا بھی میری طرف مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ ان دنوں حیدرآباد کی آبادی اتنی زیادہ نہ تھی اور اوباش قسم کے نوجوان اکثر فقیر عورتوں سے غیر اخلاقی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت میں نے مستانی کے پاس سے چلا جانا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ واقعی پاگلوں جیسی باتیں کر رہی تھی۔ میرے دماغ میں نہ جانے کیوں بات سما گئی تھی کہ مستانی کچھ نہ کچھ ضرور ہے اور یہی میرے دل کے اندر معجزاً تجسس کو ختم کر سکتی تھی۔ گو کہ مستانی نے میرے سوالوں کا جواب نہایت ہی احمقانہ انداز میں دیا تھا، لیکن میرا دل کہتا تھا اس طرح اس نے مجھ سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مستانی بیتوکی باتیں سننے کے بعد بھی اس کو کسی بھی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے سوچا رات کا کچھ حصہ گزر جائے اور جب ہر جانب سناٹا ہو جائے تو ایک بار پھر مستانی سے مطلب کی بات کروں گا۔ یہی سوچ کر میں ایک ایسی جگہ آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے مجھے وہ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ رات بھیگتی جا رہی تھی۔ میں ٹانگوں کی آڑ میں کھڑا تھا، مستانی کا فاصلے پہ کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھی کاغذ کے ٹکڑوں سے کھیل رہی تھی۔ فلم کا آخری شو ختم ہو چکا تھا۔ قطار میں صرف 2-4 ٹانگے ہی رہ گئے تھے۔ سڑک پر اکا دکا آدمی جا رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی گاڑی گزرتی تو اس کے پیچھے چند آوارہ کتے بھونکتے ہوئے دوڑنے لگتے۔ مارکیٹ کے ٹاورز نے رات کے 1:30 بجنے کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ ہی مستانی کوڑے کے ڈھیر سے اٹھ گئی۔ اب اس کا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ اس کے ایک کنارے پر سرفراز شاہ بابا کا مزار واقع ہے۔ یہ صدیوں پرانا قبرستان تھا جو کہ ہیر آباد کی پہاڑی کے نشیب سے شروع ہوتا تھا اور زیر تعمیر بیراج کالونی پر ختم ہوتا تھا۔ دوسری جانب غریب آباد سے لے کر پولیس گراؤنڈ اور دادن شاہ کے پڑ تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی قبرستان کے آخری سرے پر اللہ کے نیک بندے سید سرفراز بابا کا مزار واقع ہے، جو کہ آج کل زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ یہ جگہ دن میں بھی ویران رہا کرتی تھی، لیکن اب یہاں پٹھان کالونی اور سرفراز کالونی واقع ہیں اور قبروں کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ مستانی نہایت ہی نپے تلے قدموں سے اس قبرستان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور اس اندھیرے میں وہ ایک ہیولے کی مانند نظر آ رہی تھی۔ میں ماحول سے ذرا سا خوفزدہ ہوا، لیکن مستانی کے وجود نے میری ہمت بڑھائی۔ گو کہ اسے علم نہیں تھا کہ میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، لیکن مجھے ڈھارس تھی کہ مستانی آگے جا رہی ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ قبرستان میں داخل ہوتے ہی مستانی کو روک لوں گا اور جب تک وہ میرے سوالوں کا تسلی بخش جواب نہیں دے گی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ پہاڑوں کے ڈھلان پر جہاں سے قبرستان میں جانے کے لیے پگڈنڈی سی بنی ہوئی ہے، ایک کوٹری بنی ہوئی ہے۔ مستانی اس کوٹری میں داخل ہو گئی۔
दिन में कब्रिस्तान से मेरा 12 गुजर हुआ क्योंकि मेरे चंद दोस्त बैराज कॉलोनी में रहा करते थे और मार्केट से बैराज कॉलोनी तक पहुंचने के लिए करीब तरीन रास्ता कब्रिस्तानी से होकर गुजरता था। लेकिन मैंने पहले कभी इस कब्रिस्तान में कोई कोठरी नहीं देखी थी। फिर ये कोठरी तो रात की स्याही में साफ नजर आ रही थी, जैसे इसमें सफेद रंग किया गया हो। मस्तानी कोठरी की दाएं जानिब जाकर घूमकर अंदर गई। सामने की जानिब एक छोटी सी खिड़की थी जिसके पट बंद थे, लेकिन दर्जों में से रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। मैंने ये देखने की खातिर इस कोठरी के अंदर कौन है एक बारीक सी दर्द से आंख लगा दी। हाँ, अंदर इस कदर तेज रोशनी थी कि मेरी आंखें चकचौंध हो गईं। अब मुझे कुछ भी नजर न आया। मैंने एक बार फिर आंखों को हथेलियों से मसला दोबारा झांकने की कोशिश करने लगा। इसके साथ ही मुझे अपनी पीठ पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। मैंने खिड़की से गर्दन हटाकर देखा। मेरे पीछे एक निहायती सफेद रेश बुजुर्ग हाथ में तस्बीह लिए खड़े थे। इनके नूरानी चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं कांप उठा। अभी मैं कुछ सोच भी नहीं पाया था कि इन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए निहायती मुलायम लहजे में कहा, बेटा, इस तरह झांकना अच्छी आदत नहीं। जब यहाँ तक आ ही गए हो तो अंदर चलो। इतना कहकर बुजुर्ग दरवाजे की जानिब चल दिए। फिर मैं इनके पीछे ही कोठरी में दाखिल हो गया। कोठरी के अंदर एक सफेद दूधिया रंग की रोशनी फैली हुई थी। ये इस कदर तेज थी कि सुई में धागा डाला जा सकता था। मैंने दोबारा आंखों को जल्द जल्द झपकाया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। मुझे इस रोशनी का मुंबा कहीं नजर नहीं आया। कोठरी के आखिरी सिरे से दीवार के करीब जमीन से तकरीबन 1 फीट बुलंद तख्त था, जिस पर निहायती दीदा जेब कालीन बिछा हुआ था और इस तख्त पर सफेद बेदाग लिबास में मलबूस मस्तानी बैठी हुई थी। मस्तानी का हुस्न, इसे हुस्न नहीं कहा जा सकता, वो तो नूर था, ऐसा नूर जिसकी तरफ नजर भरकर नहीं देखा जा सकता। मस्तानी के दाएं हाथ में सुर्ख रंग के दानों की तस्बीह थी और इसमें से निहायती हल्की सुर्ख रोशनी फूट रही थी। कोठरी गुलाब की खुशबू से महक रही थी। मादा और रूहानियत। मस्तानी ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर मुझे देखा और निहायती शीरी लहजे में बोली, खान, आखिर तुम यहाँ तक आ ही गए। किस तजस्सुस ने तुम्हें मेरा पीछा करने पर मजबूर किया है? कोठरी के माहौल और फिर मस्तानी की पुरस्रार शख्सियत ने मुझ पर हैबत तारी कर दी। मैं क्या जवाब देता, गुमसुम खड़ा इसके चेहरे को तक रहा था। बोलो खान, क्या बात है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? इसने दोबारा सपाट लहजे में पूछा। मैं चाहता हूँ, दिल की बात ज़बान पर आकर रुक गई, अल्फाज होठों पर आकर रह गए। मेरी बदहवासी देखकर इसके चेहरे पर मलकूती फैल गया, जिसने इसके हुस्न को और भी दोबाला कर दिया। वो इसी दिल आवेज तबस्सुम के साथ बोली, मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो। फिर वो लम्हे भर को रुकी। इसने तस्बीह को बोसा दिया और मुझसे दोबारा मुखातिब हुई। याद रखो खान, इस कायनात में कोई राज नहीं है, लेकिन इस कायनात से इंसान इसी वक्त पर्दा उठा सकता है जब वो इन उसूलों को सदके दिल से अपना ले जो इस कायनात के खालिक ने बनाए हैं। इतना कहकर वो रुक गई। शायद उसे मुझसे किसी जवाब की तवक्को थी, लेकिन मैं तो अभी तक हैरानगी के समंदर में गोता जन था। इसने मायने खेज नजरों से मुझे देखते हुए कहा, तुम्हारे शऊर पर आज भी मादे की हल्की सी तह जमी हुई है, लेकिन इसमें कसूर तुम्हारा नहीं, क्योंकि इस कायनात में हर शय मादे से बनाई गई है। और फिर इस मादी माहौल में इतना ज्यादा मुतासिर हो चुका है कि जरा सी तब्दीली इसके लिए ना सिर्फ हैरान कुन होती है बल्कि परेशानी का बायस भी बन जाती है। इसका मतलब यह है कि मादा अपनी हैयत तब्दील करता रहता है। मैंने हिम्मत करके कहा, नहीं, ये बात नहीं है। मस्तानी ने जवाब दिया, असल राज जानने की खातिर सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मादा क्या है, मादा की असल क्या है।
हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी सुनाई देता है, हम जो कुछ भी महसूस करते हैं, क्या ये सब हकीकत है? तुमने मादे पर शक किया है, हालांकि मादे पर शक नहीं किया जा सकता। हमें जो कुछ नजर आता है, हम जो कुछ महसूस करते हैं, वही हकीकत है। मैंने जवाब दिया, अगर तुम्हारी बात को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर यही देख लो। इतना कहकर मस्तानी ने अपने तरफ हाथ से इशारा किया, जिसका मतलब कोठरी का माहौल था। मस्तानी के इस इशारे पर मैं चौंका। अब मुश्किल तमाम का, ये माहौल मेरे लिए अजनबी है। ये इतना पुरअसरार है कि मैं अभी तक हैरान हूँ। मेरी अकल अभी तक इसकी तौजी नहीं तलाश कर सकी और इसकी तौजी तलाश भी नहीं की जा सकती। मस्तानी ने हंसकर कहा, क्योंकि कब्रिस्तान में दाखिल होते ही तुम्हारे हवास से खमसा की तमाम बातनी कुव्वतें जाग उठी और अब तुमको जो कुछ नजर आ रहा है हकीकत है। इसे नजरबंदी तो कहा जा सकता है, मैंने झिझकते हुए कहा, क्योंकि मैं इस समझता था कि हवास से खमसा की कुव्वतों को धोखा देना ही कमाल है और मदारी यही कमाल दिखा कर सबको हैरत ज़दा कर दिया करते थे। हाँ, तुम कह तो सकते हो, क्योंकि तुम अभी मादे की हकीकत और इस कायनात की असलियत से वाकिफ नहीं हो। मस्तानी ने इत्मीनान से जवाब दिया। फिर तख्त पर पहलू बदल कर बोली, लेकिन जहाँ तक नजरबंदी का ताल्लुक है, इसका हकीकत से कोई भी वास्ता नहीं है। इसमें सिर्फ हवा से खमसा की एक कुव्वत बसीरत ही को धोखा दिया जा सकता है और वो भी वक्ती तौर से। इसका मतलब ये हुआ कि इस कायनात के बारे में हवा से खमसा की कुव्वतें हमें धोखा देती हैं। मैंने कहा, नहीं, ये बात नहीं है। इंसान किसी भी हकीकत को इस वक्त तस्लीम करता है जब हवा से खमसा की तमाम कुव्वतें इस पर गवाह हो जाएं। यह हकीकत और सच्चाई का मेयार है। मस्तानी ने जवाब दिया, इस वक्त तुम जिस माहौल में मौजूद हो इसकी हकीकत से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे हवास की तमाम कुव्वतें इसे कबूल कर रही हैं। क्या मतलब? मैंने कुछ समझते हुए पूछा। मतलब साफ जाहिर है, इस कायनात की मौजूदगी का एहसास हमको हवास ही के जरिए होता है। हम जो कुछ भी महसूस करते हैं हवास के जरिए ही करते हैं। अल्लाह ने इंसान को हवास की अनमोल नेमत से नवाजा है और जो लोग इस नेमत से महरूम हैं, इन्हें इस कायनात को तो क्या अपना भी होश नहीं होता। दुनिया वाले इन्हें पागल कहते हैं। मस्तानी के इस मुदल्लिल जवाब को सुनकर मैंने इकरार के अंदाज में गर्दन हिलाई। हवा से खमसा की भी दो किस्में हैं। मस्तानी ने दोबारा सिलसिला कलाम शुरू किया, एक जाहिरी और दूसरी बातिनी। हवा से खमसा की कुव्वतें जिसकी हमें पहचान कराती हैं, इसका इज़हार हम जो इसकी कुव्वत गोयाई से अल्फाज के जरिए करते हैं। गोया हवास और अल्फाज इस कायनात को पहचानने का जरिया है। इतना कहकर वो अचानक सफेद रेश बुजुर्ग से मुखातिब हुई, मेहमान की खातिर कुछ हो तो लाओ। सफेद रेश बुजुर्ग जो देर से खामोश खड़े थे, ये सुनते ही बगली दरवाजे में दाखिल होकर गायब हो गए। हवा से खमसा की दो किस्में हैं। मस्तानी ने गहरी सांस लेकर दोबारा कहना शुरू किया, एक जाहिरी और दूसरी बातिनी। इसने अपने अल्फाज पर जोर देकर कहा, जाहिरी कुव्वत मादे के बाहर देखती है, जबकि बातिनी कुव्वत मादे के अंदर झांकती है और इसकी हकीकत को पहचानती है। और जब यही कुव्वत अपने इंतहा को पहुंच जाती है तो फिर कोई राज नहीं रहता। ये कायनात इंसान के लिए मुसख्खर हो जाती है। ऐसा इंसान रूहानी दुनिया का बासी मालूम होता है। इस कायनात की हकीकत जानने के बाद वो सही मायनों में अशरफुल मखलूकात कहलाने का हकदार होता है। मस्तानी की इस आलिमाना गुफ्तगू ने मुझे महुए हैरत कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की कलंदराना तबीयत की मालिक इल्म नफ्सियात और मादुल नफ्सियात पर इस कदर दस्तरस रखती होगी। अब मैं एहसास कमतरी का शिकार हो चुका था। मस्तानी के सामने मेरी हैसियत खाक के जर्रे से ज्यादा नहीं थी। वो इल्म का एक ऐसा दरिया थी जिसकी तह नहीं थी, लेकिन मैं भी आसानी से शिकस्त मानने को तैयार नहीं था। मैंने भी आलिमाना गुफ्तगू पर ये कहकर पानी फेर दिया, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं समझा। तुम इन बातों को आसानी से समझ भी नहीं सकोगे। मस्तानी ने निहायती शफकत से कहा,
इस कायनात की हकीकत जानने की खातिर इंसान को सख्त मेहनत करना पड़ती है। वो मुझे समझाने वाले लहजे में बोली, इस हकीकत को भी जानने के दो तरीके हैं। इसने अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियों से इशारा किया। एक मादी तरीका है जिसमें किसी भी रिश्ते के बारे में मादी मसाइल से गौर व फिक्र और मुशाहिदा किया जाता है, जिसे जदीद दौर में साइंस भी कहा जाता है। दूसरा तरीका वो है जिसे मजहब कहा जा सकता है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इसका तरीक़ाकार मौजूद है और लोग अपने अपने मजहब के तरीक़ाकार के मुताबिक जिस्मानी और दिमागी वर्जिश करके इस हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। मजहब से इस कायनात का क्या ताल्लुक है? मैंने इसे टोका। बहुत गहरा ताल्लुक है। मस्तानी ने तख्त पर हल्के से हाथ मारकर कहा, हक ताला ने ये कायनात बनाई है, इसलिए इंसान वैदानियत को पहचान ले, कुदरत को मान ले और इस मकसद की खातिर उसे मजहब का लिबास पहनाया है। मजहब के बगैर इंसान कायनात को नहीं परख सकता। जब वो इस कायनात को नहीं जान सकता तो खालिक कायनात को भी नहीं पहचान सकता। इसके अलावा तुम्हारी साइंस, इसने उंगली से मेरी जानिब इशारा करते हुए कहा, इस हकीकत को तस्लीम करती है कि इस कायनात में हर शय का अपना मरकज है और इंसान का मरकज मजहब है। जो शय मरकज से हट जाती है वो इस वक्त तक भटकती रहती है जब तक वापस मरकज पर ना आ जाए। इसी तरह वो लोग जो अपने मरकज यानी मजहब से हटकर इस कायनात की हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं, वो बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं। इतना कहकर वो लम्हे भर को रुकी, फिर बोली, मैं समझती हूँ तुम्हारे जहन में मजहब और इस कायनात के ताल्लुक से जो शक था वो खत्म हो गया होगा किसी हद तक। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया, तुम्हारे दिमाग में ये शक इस वजह से भी पैदा हुआ कि दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में इस कायनात की हकीकत जानने का जो तरीका कार राइज है वो निहायत ही मुश्किल और सबर आजमा है। यही वजह है कि इनमें बहुत से कम लोग ऐसे मिलते हैं जो इस कायनात को पहचानते हैं और हक ताला के करीब होते हैं। लेकिन बहरहाल इनमें से लोग मौजूद रहते हैं जो मावराई मालूम उलूम पर दस्तरस रखते हैं। मैंने कहा, खान, वो निहायती संजीदगी से बोली, हमें दूसरों के बारे में बहस करने का हक नहीं है। जरूरी यह है कि पहले हम अपने मजहब को देखें, पहले हम इसको जांचें, जब भी हम दूसरों की अच्छाइयों और बुराइयों को भी जांच पड़ताल कर सकते हैं। चलो यूं ही सही, मैंने इसकी हाँ में हाँ मिला दी। दीन जिसे इस्लाम कहा जाता है निहायत ही आला और अरफा है। मस्तानी दोबारा गोया हुई, ये मेरे महबूब हक ताला का सबसे प्यारा दीन है और इसी नाते से ये निहायत ही मुकद्दस और कवी दीन है। इसके बारे में मेरे महबूब ने फरमा दिया कि ये क़यामत तक कायम रहेगा। और जानते हो ये क़यामत तक क्यों कायम रहेगा? मस्तानी के सवाल के जवाब में मैंने नफी में सर हिला दिया, इसलिए कि इंसानियत को इस दीन में मुकम्मल कर दिया गया है। इतना कहकर वो रुक गई। पार्ट 2 सफ़ा नंबर 40 पर इख्तिताम पजीर होता है। बक़िया किताब का आप पार्ट 3 सफ़ा नंबर 40 से समाअत फरमाइए।